everyone settle down once and for all? Yes, so we were discussing the concepts, basic concepts of international relations. We have seen the idea of state, we have seen the idea of nation, nationalism, and nation state. Then we saw the concept of power, then the concept of national power. We saw the dimensions of national power. Now we are going to see the role and use of this national power. I told you last time that national power is the currency which is used for transaction in international relations. It is that entity which enables you to achieve your foreign policy goals. So naturally, this currency, I mean, don't use the word in the paper as such, this is just to make you understand. So this is a very important asset that a country possesses, national power. कैसे यूज होता है नेशनल पावर, किस चीज के लिए यूज होता है? मल्टीपल थिंग्स. Let us see what all it is used for. First and foremost, and the most important thing is national security. The primary goal of every country is to preserve itself. Okay? Preservation, self-preservation is a basic instinct of any form of life. And nation also has life in that sense. It wants to preserve itself. It does not want anybody trampling upon it. And therefore, nations use their national power to ensure their security. You see, a few months ago, several months ago rather, when Russia decided to invade Ukraine, everybody said that it will be a one-sided affair. Russia with its military might will be able to steamroll over Ukraine. A tiny country will not be able to stand up the might of a former superpower. Military superpower definitely today also. And you see how Ukraine has fought back. It has used its national power to the fullest extent. Okay? Ensuring that this war is in a stalemate. And even if it's a stalemate, it's an embarrassment for Russia. Putin has claimed it is a matter of just a few weeks before Ukraine will finally surrender to its demand. But that did not happen. Because national power is a very, very important thing. Every country naturally wants to use it for itself. Let us our example आपको बताता हूँ from history. Not exactly the context, but maybe it will convey what I want to tell you. When Alexander came from Greece, and along the way his army defeated all the major kingdoms, they felt that as they enter India, they will have a cakewalk with the smaller kingdoms that were there on the bordering areas. But little did Alexander know the resolve of King Porus or Kuru, जिसको हिस्ट्री में हमारे to fight back. Porus was a brave warrior who was determined for preservation of his state, and he puts his back into that defense. So much so that even Alexander gets a scare. He manages to win, but Porus does not go down before making a very strong statement. One that impresses the mighty Alexander himself. And when he is brought before Alexander in a wounded state, defeated, Porus does not lose his poise. Alexander asks him, "How shall I treat you now?" कैसी ट्रीटमेंट चाहते हो तुम आप मुझसे? आपके हमारे जैसा कोई होता ऑर्डिनरी इंसान तो कहता माई बाप जान बख्श दो. Porus was Porus. He said, "Treat me like a king, even if I'm fallen, even if I'm injured, about to die perhaps. But that does not allow you to rob me of my dignity. I'm a king after all." बोलूं चालूं तो राजा होता समझता. That was Porus. Alexander को भी, he was impressed, and Alexander treated him quite well after that. So the first thing that your national power is used for is for your self-preservation. That is the most important. Your security. And security obviously primarily means your physical security. But that is not just the only dimension.
Your security has many other dimensions. Security can be your economic security. It can be your energy security. It could be your food security. There are many dimensions to it. So this national power is very important for your security related purpose. Anyone relate with this? First aspect. Second and third are interrelated actually. Preserving of status quo. Pronunciation is like this. Quo. U is silent. Status quo. Status quo मतलब क्या होता है? जैसे थे वो पोजीशन, जो हालात हैं वैसे ही रहने चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए. That's called as status quo. Some countries who have a favorable balance of power. Balance of power क्या है हम आगे देखेंगे. अभी फिलहाल मैं सिर्फ बेसिक समझ. जिनके फेवर में है सिचुएशन है ऐसा ले लीजिए. They always want that to perpetuate. जिसके पास में सत्ता होती है, पावर होता है, वो क्या चाहता है? वो उसके पास में ही रहे. So such states will use their national power to maintain the status quo, to preserve it. International relations में कहते हैं that power is conservative. So note करके रखिए. क्या कहते हैं? Power is conservative. Means what? Power is conservative का मतलब होता है कि पावर जो है वो जैसी सिचुएशन है वैसे उसको मेंटेन करना चाहिए. Once somebody has access to power, then he or she does not want to give that away. सही है ना ये चीज? That is the essence of this phrase. Power is conservative. आहे ती स्थिती आपल्याला तशीच मेंटेन करायची. That is the essence of this phrase. Power is conservative. Did you understand this? Okay. So countries will try to use their national power to maintain the status quo if it favors them. Let me give you an example. At the end of Cold War, we enter into an era of unipolar world. USA is the only pole. Everybody has to realign according to that. हमको भी करना पड़ा ना realign. We used to be tilted towards USSR, but हमारी policy change हुई. So USA has tasted that unipolar world. Now when China is emerging as a threat to that position, USA is using its national power to deny the rise of China to the extent possible. If you cannot deny, at least delay to the extent possible. कर रहा है कि नहीं यूज? So ये होता है इसका नेचर. और उसके कॉन्ट्रास्ट में China is trying to upset that status quo. It is trying to establish a new status quo. Such a status quo where balance of power will be tilted in its favor. So national power को हर कंट्री यूज करती रहती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में. किस चीज के लिए? Either for maintaining that status quo or for changing that status quo in their favor. Getting this depending on situation to situation. समझ में बात है? अब हर एरिया के अंदर में ये स्ट्रगल चलता रहता है. यही नहीं कि सिर्फ नेशंस के बीच में स्ट्रगल हो रहा है. क्लाइमेट चेंज एक मुद्दा है फर्दर. क्लाइमेट चेंज के अंदर में कंट्रीज आर फाइटिंग इट आउट टू एंश्योर बैलेंस ऑफ पावर इन देयर फेवर. इंटरनेशनल ट्रेड एक अलग मुद्दा है, उसमें अलग तरीके से फाइट चल रही है. ठीक है. टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म, ये एक अलग मुद्दा है. सो एवरी डोमेन के अंदर में दिस स्ट्रगल इज गोइंग टू गो ऑन. डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है. एंड एवरी कंट्री विल ट्राई टू यूज इट्स नेशनल पावर टू शिफ्ट दैट बैलेंस इन इट्स. Got this point? So we saw three areas. One is your security. Second is conservation of status quo or changing of status quo. Next, national power is used in the practice of diplomacy. I think I've told you what diplomacy is. Have I? Every country posts its diplomats in embassies, consulates across the world, international institutions, where these diplomats
try to secure the interest of their mother country. Now, while doing that, that particular diplomat will be limited by the national power that his country has. आप मार्केट में जाते हैं तो आपके जेब में पैसा कितना है इस पर ही डिसाइड होगा कि आप वहां क्या खरीद सकते, सही है कि नहीं? तो वैसे ही जब डिप्लोमेट इंटरनेशनल रिलेशंस में एक्ट कर रहा है तो उसकी बार्गेनिंग पावर क्या है? बेसिकली उसकी कंट्री का नेशनल पावर ही है ना। तो उस नेशनल पावर के बेसिस पर ही वहां पर में उसके सारे डील्स डिसाइड होंगे. हाउ strongly he will be able to secure his nation's interest will be circumscribed by the national power of his country. So imagine कीजिए दो डिप्लोमेट्स हैं, एक यूएसए का डिप्लोमेट है और दूसरा घाना का. If the diplomat from Ghana is very very good at his skills and the diplomat of USA is a very mediocre kind of a professional, even then the diplomat of USA will always have an upper edge because his national power is that much. Getting this? ठीक है. So diplomacy के अंदर में भी आपका ये national power use होता है. Got the idea? Next, enhancing the prestige of one's country. एक कहावत है जुडिशरी में, justice must not only be done, justice must not only be done, it must be seen to be done. Justice must not only be done, it must be seen to be done. मतलब क्या हुआ इसका? सिर्फ न्याय मिलना ये काफी नहीं है, न्याय मिल रहा है ये दिखना भी चाहिए. Same thing is applicable to your national powers. It is not enough that you have national power, it must also be visible. क्यों? क्योंकि जब आप उसको डिस्प्ले करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है. Every year we organize this spectacle called as Republic Day Parade on 26th January. We invite a prominent foreign dignitary as guest on that day. And we spend hundreds of crores of rupees on that gala event. Why do we do that? Among other reasons, of course we are celebrating our Republic, no doubt about that. But among other reasons, it also is a powerful statement. It tells the world what kind of a power we are. Don't we display our latest military paraphernalia on that day? Don't we showcase our latest achievements on that day? So it is a means to enhance the prestige of our country by displaying our national power. मंगलयान भेजा था हमने, इतने कम एवरेज में भेजा था कि मर्सिडीज कार का एवरेज जो है वो उससे कम है. अगर कैलकुलेट अगर आप करेंगे कितना खर्च किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड वी डिस्प्लेड दैट. सो ये हमारा नेशनल पावर है. आवर प्रोग्रेस इन स्पेस इज अ नेशनल पावर, पार्ट ऑफ इट, राइट? सो उसका भी टैब्लो हमने बना के डिस्प्ले किया था ना. ठीक है. सो दिस इज हाउ नेशनल पावर इज यूज्ड. Are you all there with me? Yes, no, can't say. What are we seeing? National power. उसमें हमने देखा role and use. Now, broadly, this national power is divided into 5 categories. यानी national power आता कहाँ से, मिलता कहाँ से है, किस चीज से derive होता है. तो उसकी 5 broad categories जो है वो बन सकती है. And what are these categories? Let's see them. The first category in that is the natural elements that that particular nation state possesses. आपकी ताकत, नेशनल पावर जो है वो डिराइव करने का एक माध्यम है आपको मिले हुए नेचुरल रिसोर्सेस. टेक फॉर इंस्टेंस द ज्योग्राफी ऑफ दैट कंट्री. Geography of that country. You see, India is gifted with a very varied and diverse kind of geography.
We have mountains, we have plains, we have deserts, we have rivers. You name it, and that kind of topography, geography is there with India. Consequently, we are very rich in natural resources. है ना? 7,500 किलोमीटर के हमारे पास में कोस्ट लाइन है, फ्रिजिड माउंटेन्स हैं, बीचेस हैं, डेजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं. फॉरेस्ट में भी कितने अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं हमारे पास. इस सबसे क्या होता है, आप समृद्ध होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से. Naturally, this adds a lot of power to your national power. You take some countries, like say for example, Afghanistan. Now, Afghanistan is, I mean, until recently, अब तो खैर मिनरल्स वगैरह वहां पर भी डिस्कवर हो गए हैं. लेकिन until recently, it was more of a rugged terrain. ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पर में उपज नहीं है, वैरायटी नहीं है. So automatically वहां पर में लिमिटेशंस आ जाती. मंगोलिया ले लो, मंगोलिया इज पूरा स्टेपीज. वहां पर में एग्रीकल्चर बहुत फ्लरिशिंग हो नहीं सकता. सिविलाइजेशन वहां पर इसीलिए डेवलप की, ट्राइबल सोसाइटीज हमको वहां दिखती है. सो उसकी ज्योग्राफी ही उसको लिमिट करती है. अग्री करते ना इससे. यूएसए देख लीजिए, यूएसए इज इंडिया एम्प्लीफाइड मेनी टाइम्स. 7 times the area of India. Access to 2 different oceans on either side. 20वीं सदी और उससे पहले अटलांटिक ओशन वाज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. अमेरिका को अटलांटिक का एक्सेस. आज इंडो पैसिफिक है, अमेरिका को दूसरी साइड से उसका एक्सेस है. राजकारण इकडे सरकला काय तिकडे सरकला. अमेरिका इज कनेक्टेड टू इट. इन दिस पॉइंट बहुत बड़ा एडवांटेज है ना ज्योग्राफी के लिए. एंड देन अगेन टोपोग्राफी आल्सो. अमेरिका हैज माउंटेन्स. मैं पोर्टलैंड स्टेट गया था, वो तो स्टेट ऐसा है जहां पर में छोटा सा स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. एक तरफ उसके माउंटेन्स है, फ्रिजिड माउंटेन्स, और माउंटेन से नीचे उतरते हुए आप जाएंगे तो बीचेस तक पहुंच. सो इतनी वैरायटी जो है वो एक स्टेट के अंदर अमेरिका की नहीं. मच लाइक इंडिया बट ऑन अ बिगर स्केल. इससे क्या होता है, ये ज्योग्राफी जो है वो आपको रिसोर्सेज देती है. अच्छा, ज्योग्राफी ऑल्सो मीन्स हु ऑल्स अराउंड यू. जहां आप लोकेटेड है वहां पर आपके आसपास में कौन है, ये भी ज्योग्राफी से कनेक्टेड. आई थिंक इट वाज अटल बिहारी वाजपेयी who said that we can't choose our neighbors. यूएसए को नेबर कौन मिला है, कनाडा. ज्योग्राफी की वजह से. कितना अच्छा कंट्री, इतना अच्छा नेबर मिलता है किसी को. इट इज टोटली इनसाइड फोकस. अपना डेवलपमेंट, मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट. ठीक है, अपना अपना काम कर रहे हैं. इधर अपने खुद की नची और मिला हमको. इधर पाकिस्तान, उधर चाइना. ठीक है, तो दैट ज्योग्राफी आल्सो मैटर्स अ लॉट. Are you understanding that? Will this add to your national power or reverse also reduce it? Of course it will. Geography matters a lot. Next is your population. Okay. The population that a country has is also a big source. You see, today the world is supporting India. कर रहे कि नहीं कर? सबको यहाँ के बिजनेस करना. मार्क जुकरबर्ग आता है, मोदी जी को झप्पी देता है. क्यों देता है भाई? इंडियंस अच्छे लगते हैं इसलिए? नहीं. इट मेक्स बिजनेस सेंस. दुनिया में और कोई देश ऐसा बचा नहीं है जहां पर इतना बड़ा सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है. इंडिया हैज थर्ड लार्जेस्ट पीपल ऑन इंटरनेट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल येट टू कम ऑन इंटरनेट. ये ब्रिटेन जो कंट्री है ना, इन लोग का पूरा पॉपुलेशन ऐड कर लेंगे ना तो हमारे 10-15 डिस्ट्रिक्ट का बनता है. यूपी अगर कंट्री बन जाता ना तो दुनिया का 7वां सबसे पॉपुलस कंट्री बनता. उत्तर प्रदेश सिर्फ अकेले, बाकी लोग हिंदी नहीं रहेंगे. हमारा बड़ा विश्वास है इसके अंदर में, मुलं ही देवाची फुलं. And that has really given us a big boost. Every 6th person on the planet is Indian. हर 6ठा आदमी जो है वो भारतीय है. ठीक है. So naturally
इट एड्स टू अवर, क्योंकि मार्केट है, बिजनेस करना है, अगर आपको सेल करना है कोई चीज, इंडिया से बड़ा और आपको अच्छा मार्केट मिल नहीं सकता, स्पेशली फॉर वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, तो ये हमारे लिए नेशनल पावर को ऐड कर सकते हैं। एंड इंडिया जनरली स्पीकिंग वी आर इंटेलिजेंट, असं आपल्याला वाटतं की नाही? येस वी आर, जनरली स्पीकिंग, हार्ड वर्किंग ऑल्सो, ठीक है, स्पेशली व्हेन वी गो आउट, इन माइग्रेंट्स इंडियंस दे हैव डन वेरी वेल वेयरएवर दे वेंट। सो इंटेलिजेंस है, हार्ड वर्किंग नेचर है, ये पॉपुलेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन जाए। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ नेचुरल एलिमेंट्स जो नेशनल पावर को ऐड कर। अग्री कर रहे हैं सर? सेकेंड, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट्स। What kind of technological industrial capacity a country has that adds to its national power? 20,000 nautical miles से ब्रिटिशर्स यहाँ आए। कितना? 20,000 nautical miles। यहां से वापस जाना होता था उनको तो 6 महीना लगता था पहुंचने की, 6 months। और वहां से यहां आकर के लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, रिलीजन अलग, रेस अलग, सब कुछ अलग, लेकिन यहां पर मैं आकर के राज कर, एट देयर पीक देयर वर हार्डली 5 lakh white British people living in India, and they are able to rule a subcontinent of more than 20 crore people. Look at the percentage. Why they are able to do that? It was because of their technological and industrial capacity that added to their national power. 1857 के रिवोल्ट के बाद कुछ हमारे सिपाहियों को फांसी दी जा रही थी, उसमें से एक सिपाही बोल पड़ा कि हमको फांसी जो है इस रस्सी से नहीं दी जा रही। बिपिन चंद्रा ने नोट किया अपनी किताब में, हम पढ़ेंगे 1857 रिवोल्ट पहला चैप्टर। क्या बोलता है वो सिपाही? इस रस्सी से हमको फांसी नहीं दी जा रही, हमको फांसी दी जा रही है वो टेलीग्राफ लाइन से, क्योंकि उसने इतना डिसाइसिव एडवांटेज दे दिया था ब्रिटिशर्स को, दे कुड कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग दैट, एंड दैट इज व्हाई दे वर एबल टू डिफीट द इंडियन सिपाहीज। व्हाट इज दैट? दैट इज योर टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। अफ्रीका में कॉन्गो एरिया वाज अ कॉलोनी ऑफ द बेल्जियम का किंग लियोपोल्ड, और वहां पर में उसने जो कांड किए ना भाई, अत्याचार बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, तो उसके सारे इन एट्रोसिटीज पर किताब लिखी गई, लियोपोल्ड्स बोस्ट। उस किताब के अंदर में एक पोएम है, उस पोएम की आखिरी लाइन बस आपको बता रहा हूं, आखिरी लाइन मैं सुना रहा हूं बस। Whatever happens, आखिरी लाइन उस पोएम की, whatever happens, we have the maximum gun and they don't have it. पोएम की आखिरी लाइन है, whatever happens, we have the maximum gun and they don't have it। मतलब ये अफ्रीकन लोग चाहे जितने ही स्ट्रॉन्ग हो, बहादुर हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली मैक्सिमम गन, ये नहीं आप कह सकते हैं कि योर टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी किसके पास है? वो गोरे लोगों के पास है। That's why they were able to. The same is applicable today also. Why is South Korea doing so well? World War II में डिस्ट्रॉय हो गया था साउथ, लेकिन आज जो सेमीकंडक्टर्स की इंडस्ट्री है उसमें देखिए साउथ कोरिया सबसे आगे है। आप ऑटोमोबाइल्स देख लीजिए, Hyundai, Kia, they are all ruling the market of the world. Next door Japan is also not any different. हालांकि मिलिटरीली जापान तो और भी कमजोर है, उनके पास खुद की आर्मी भी नहीं है। I told you that story in world history. But what do they have? They have technological and industrial capacity, and that adds to their national power. जापान ने देखिए दुनिया को इंडस्ट्री में कितनी चीजें दी। सिक्स सिग्मा पढ़ा है इंजीनियर्स कितने यहाँ पे? पढ़ा है सिक्स सिग्मा? थोड़ा बहुत तो पढ़ा। काइजन, कानबान, टोयोटा वे, just in time. What are these? Japanese technologies or systems for efficient manufacturing. Just in time दिया है उन्होंने। अपन ने क्या दिया है? Never in time. उनका JIT है just in time, हमने दिया never in time. आपली प्रणाली। Anyways,
तो समझ में आया, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी विल इट ऐड टू नेशनल पावर, इसीलिए मेक इन इंडिया, इसीलिए नेटवर्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसीलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कर रही है ना भारत सरकार, इसीलिए नेशनल पावर को ऐड करता है। नेक्स्ट इज योर एग्रीकल्चरल कैपेसिटी। एमएस स्वामीनाथन, द ग्रेट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, वो ये लिखते हैं, he was chairman of National Commission on Farmers। इस कमीशन का एक रिपोर्ट है, इस पे मैंने एक छोटा वीडियो बनाया है। जितनी भी इंपॉर्टेंट कमिटीज पिछले 15 साल की हुई हैं, उन सब पे मेरा वीडियो है, 2 वीडियोस है, आप देखिएगा, नोट्स के साथ में दिया है, बहुत अच्छे क्रिस्प नोट्स बनाए, ये हमेशा काम आए। सो एनसीएफ के चेयरमैन एमएस स्वामीनाथन कहते हैं, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज कंट्रीज who have grains not guns। फ्यूचर किसको बिलोंग करता है? उन कंट्रीज को जिनके पास में ग्रेन्स हैं, नॉट गन्स। ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं एफोरिज्म। एफोरिज्म, APHORISM, एफोरिज्म मतलब छोटे से वाक्य में बहुत ज्यादा विजडम छुपा हुआ है। इनको कलेक्ट करना है आपने। We also have to write 150 words का आंसर, स्पेस कम है, टाइम कम है। छोटे छोटे एफोरिज्म्स जो है ना, हमारे आंसर को ब्यूटीफाई करते हैं, उसका वजन बढ़ा। सो एग्रीकल्चरल कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री मैटर्स अ लॉट। मैं अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको, मिसेस गांधी। मिसेस गांधी की जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टरशिप है आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री, she becomes prime minister. In that phase, Mrs. Gandhi's foreign policy is rather, मतलब एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर की सिचुएशन अच्छी नहीं थी। वी वर डिपेंडेंट ऑन यूएसए फॉर व्हीट सप्लाई। लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में ही देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ ड्राउट इन इंडिया। मिसेस गांधी इनहेरिट्स दैट प्रॉब्लम। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ, तब जाकर के हम सेल्फ सफिशिएंट थे, ठीक है। सो पहले खाने पीने के ही लाले हैं, सो टू स्पीक। तो आप बाहर जाकर के क्या एग्रेसिवनेस दिखाऊंगे? हरी बात समझ में। बट वंस ग्रीन रेवोल्यूशन इज डन, यू सी अ डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर, मच मोर बोल्ड, मच मोर असर्टिव इन द इंटरनेशनल अरीना। ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पीछे कौन जिम्मेदार था? जो चीज दिखती नहीं है लेकिन होती है, क्या था वो? एग्रीकल्चर की सेल्फ सफिशिएंसी। हरी नवा समझना आपको, ठीक है। PL 480 गेहूं आता था, मान वो यूएस में पिग्स को खिलाया जाता था, और वो जब इंडिया में आता था तब वो लोगों को मिलता था। इसको एक राइटर लिखता है, शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस है भारत। हैंड टू माउथ आपने सुना होगा, इंग्लिश में मुहावरा है हैंड टू माउथ, मतलब जैसे तैसे आप सर्वाइव करते। तो जब वो शिप्स आती थी वीट वाली, तब जाकर के हमारे अपन में फूड की अवेलेबिलिटी होती। We call it ship to mouth existence. Once that problem was solved, then you see a different prime minister. So इतना important होता है आपका एग्रीकल्चर का कैपेसिटी। Today yes, we have become self-sufficient largely. सभी एरियाज के अंदर में बहुत थोड़ा है, दाल वगैरह हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, पाम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन बाकी बहुत सारे एरियाज में हम सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन एफिशिएंसी अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज लैगिंग। You see, in many of the crops, we are the largest producer, but per acre yield of India is still, not there in the top ranks. What does this show? We don't have efficiency. Return on capital employed देखो, ROCE, मतलब कितना पैसा खर्च करने के बाद में कितना आउटपुट निकल के आता है। इंडिया का वो जो है वो बहुत पुअर है। यही चीज यूएस के अंदर में they have very high levels of efficiency. ठीक है? So that's why their agriculture is much more robust than ours. 75 million metric tons के आसपास में हमारा टोटल फूड प्रोडक्शन था at independence. आज वो 300 के करीब पहुंच चुके। Many times over we have jumped. लेकिन फार्मर के हालात बदले नहीं बदले। फार्मर आज भी सुसाइड कर रहे हैं। फार्मर्स के बच्चे जो है नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स रिपोर्ट करते हैं, फार्मर्स के बच्चे किसानी करना नहीं चाहते। Because they know it's a very back-breaking exercise and you don't even get the returns for it. So ये हमारी weakness है। एग्रीकल्चर की स्ट्रेंथ भी नेशनल पावर को ऐड करती है। आई बात समझ में आपको? नेक्स्ट, मिलिट्री स्ट्रेंथ।
The best example of this military strength could be Russia. रशिया इकोनॉमिकली स्पीकिंग अगर आप देखेंगे, इकोनॉमी उसकी बहुत बड़ी नहीं है, डिस्पाइट इट्स पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वगैरह वगैरह, रशिया की इकोनॉमी का स्केल उतना बड़ा नहीं। तब इंडिया उससे कोई बहुत, इंडिया तो इनफैक्ट पीपीपी बेसिस के ऊपर में तो आगे ही है, लेकिन रशिया जो है वो कोई बहुत स्केल पर नहीं है इकोनॉमी के तरफ से, बट स्टिल रशिया इज इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन बीइंग इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। I think I might have told you that for next 40 years, India remains dependent on Russian wares, defense wares, even if we stop importing today itself. रशिया से हम एक स्क्रू भी अगर आज से लेना बंद कर देते हैं, तो भी अगले 40 सालों तक जितना हमारे पास में रशिया के डिफेंस गुड्स हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए हमको रशिया चाहिए। एक भारत की स्टोरी है, ऐसे कई कंट्रीज है दुनिया में वो डिपेंडेंट ऑन रशिया। तो ये मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो ऐड करती है, एंड दिस हैज ऑलवेज बीन द केस। हिस्ट्री आप उठा करके देखिए, ग्रीस में देयर वाज अ स्टेट कॉल्ड एज स्पार्टा, सुना होगा आपने इसके बारे में। स्पार्टा जो स्टेट था वो इकोनॉमिकली उतना फ्लरिशिंग नहीं था, लेकिन फिर भी ग्रीक जितने भी स्टेट्स थे उसके अंदर में उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसकी नेशनल पावर वाज बेस्ड ऑन देयर मैसिव मिलिट्री पावर। दूसरे स्टेट्स कल्चरली इकोनॉमिकली और ज्यादा आगे थे, लेकिन स्पार्टा हैड मिलिट्री स्ट्रेंथ। सो दिस आल्सो इज सिग्निफिकेंट फॉर योर नेशनल पावर। वी हैव सीन टू एलिमेंट्स thus far, natural, second is scientific and technology, third is political elements which add to your national power. First in that is the type of government that you have. Now here by type of government we don't mean whether it is democracy, so on and so forth. Or what I mean over here type of government say is वो government citizens के लिए, अपने national power के लिए कितनी dedicated. You see, after independence, many of the African countries have been exploited by different powers. And the reason behind that was their governments were dominated by local elites who were corrupt to the core, who did not bother about their nation, who were only who were only happy with profiting themselves. That was the type of government that they had. So consequently, national power of such countries actually suffers. And then there are some countries where the government is genuinely dedicated for their national cause. Again, I come to the example of Japan, a country so brutally ravaged at the end of World War II, rises from ashes like a phoenix. In a matter of a decade and a half, its products start to dominate international markets. Whether it is Sony in electronics or it is Honda in, Yamaha in automobiles, उसी जापानीज प्रोडक्ट्स की धूम जो है दुनिया भर में हो जाती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट दैट दे हैड. ओके, देयर लीडरशिप वाज डेडिकेटेड टू दैट कॉज ऑफ अचीविंग ग्रेटनेस अगेन. दिस इज व्हाट वी मीन बाय टाइप ऑफ गवर्नमेंट. किस तरीके से वो गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है अपने लोगों के लिए, किस तरीके से वो बिजनेस को एनकरेज करती है, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थी, या हमारी तरह है. आई मीन कभी कभी मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता हूं, बट वो रियलिटी. हमारे यहाँ पर में क्या होता था, बिजनेस आपको सेटअप करना है तो आपको 25 डिपार्टमेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी. एवरी डिपार्टमेंट मींस एवरी डिपार्टमेंट यू हैव टू क्लीन. इतना सब करने के बाद में देन देयर इज इंस्पेक्शंस, वहां पर में भी आपको सब चीजें मैनेज करना. सो हाउ विल दैट कंट्री प्रोग्रेस? ये सब चीजें आपको जापान के अंदर नहीं दिखती, साउथ कोरिया के अंदर भी नहीं दिखती, कनाडा के अंदर भी नहीं दिखती, जर्मनी में नहीं दिखती. जर्मनी भी डिस्ट्रॉयड था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, बट अगेन इट बिकेम अ मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट. और उसी से अलाइड पॉइंट है उसकी ब्यूरोक्रेसी की ऑर्गेनाइजेशन और उसकी एफिशिएंसी. The way its administrative systems work, the kind of attitude that they have. Just last week I was talking to a candidate who was undergoing training, and I was shocked to know that the kind of attitude that selected
आर्ट ऑफ लीविंग सुना था आपने, आर्ट ऑफ एंटरिंग बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग पॉलिटिकल एलिमेंट्स, सो टाइप ऑफ गवर्नमेंट, द काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी इट हैज। तो मैं कह रहा था अप्रोच एटीट्यूड जो है वो ब्यूरोक्रेट्स का कैसा होना चाहिए। You are being selected through a very painstaking process. A lot of effort is taken to select the best minds of the country. और हेतु ये है कि ये जो ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं ये वाकई ही वो इच्छा रख करके जाएं कि देश की सेवा करनी है। लेकिन जैसे ही आप यहां से वहां चले जाते हैं, एज इन वो ट्रांजिशन जब हो जाता है, a lot of candidates we see they become elitist. वो हाई फ्लाइंग लाइफस्टाइल को यूज हो जाते हैं और वो जो कनेक्ट होना चाहिए ना मास्टर्स के साथ उसको वो खो देते हैं। मैं एक बहुत सीनियर ऑफिसर को जानता हूं जिनका मैं उसको जस्टिफाई या वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जस्ट सोच कहां तक हो सकती है इंसान। वो ये कहते, उनका पहनावा जो है ना वो बड़ा सिंपल रहा है इनका, वेरी सीनियर पर्सन, लेकिन बहुत सादगी से ड्रेसिंग करते हैं। और मेरे साथ में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, फ्री में बात करता था उनके साथ में। थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने उनसे पूछ लिया, सर आप इतने सीनियर पोजीशन पे लेकिन आप जो है आपकी ह्यूमिलिटी इतनी दिखती है, आपका ड्रेसिंग सेंस भी इतना सिंपल है, ऐसा क्यों ये रहा आपके साथ? तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरा काम है कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, ठीक है, तो मेरा सारा जो डिमीनर है वो ऐसा होना चाहिए कि मैं सामान्य में से लगना चाहिए। कॉमन मैन मस्ट फील दैट ही कैन कम एंड टॉक टू मी। ओके, अगर मैं उस if I have those kind of airs कि मैं अगर वो एलिटिस्ट टाइप का थ्री पीस सूट पहन करके प्रोग्राम्स और मीटिंग्स में घूम रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, कॉमन पीपल विल नेवर बी एबल टू अप्रोच मी एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। आई डोंट वांट टू लूज दैट कनेक्ट, दैट टच विद द मासेस, ठीक है। तो एंड तक उनका वो स्टाइल जो है वो रहा। लेकिन अब मैं इंक्रीजिंगली देख रहा हूँ, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत भी रहूं, लेकिन एक एलिटिज्म जो है ना वो परवेड कर रहा है। बहुत हम्बल और मीडियोकर बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे भी वंस दे गेट सिलेक्टेड उनको वो सारी चीजों की चट हवा लग जाती है एंड दे लूज दैट कनेक्ट। आई होप दैट वोंट बी द केस विद यू। नेक्स्ट, विजडम ऑफ इट्स लीडरशिप एंड द क्वालिटी ऑफ इट्स डिप्लोमेसी। लीडरशिप का विजडम कैसा है? यू सी, शिंजो आबे who passed away recently, Shinzo Abe was the grandson of foreign minister of Japan during World War II. वो वैसे elite family से आता, and he had a very strong commitment to bring about that lost glory or greatness of his country. He was constantly struggling with America to ensure that Japan is able to rebuild its armed might also. Okay? So इस टाइप की जब पॉलिटिकल लीडरशिप होती है जो अपने बियॉन्ड, खुद के बियॉन्ड जाकर के अपने नेशन के लिए सोचते हैं। There are politicians who are professional. For them it's a career, and then for some people it is about service to their country. जब उस टाइप की लीडरशिप होती है तो नेचुरली उस कंट्री का जो नेशनल पावर है वो एनहांस होता है, उस कंट्री की अंतरराष्ट्रीय लेवल पे प्रतिष्ठा बढ़ती है। एक छोटा सा स्टोरी मुझे इंदिरा गांधी के लाइफ से याद आता है, मैं बता के रखता हूं। Once Mrs. Gandhi went to USSR. प्लेन लैंड हुआ उनका और बाहर आई वो। इंटरनेशनल रिलेशंस में या गवर्नमेंट सारी सिस्टम्स में प्रोटोकॉल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। हर पद की जो है वो एक मर्यादा होती है जिसको आपको अपहोल्ड करना पड़ता है। When Mrs. Gandhi came down the flight of stairs from the aeroplane, it was a junior minister standing there to welcome Mrs. Gandhi. Mrs. Gandhi ने बुके एक्सेप्ट किया ग्रेसफुली, गाड़ी में बैठी और उन्होंने एम्बेसडर जो होते हैं भारत के वो ऑब्वियसली प्रेजेंट रहते हैं। उन्होंने एम्बेसडर से कहा कि आपके घर पे गाड़ी ले चलिए, नॉट वेयर द अरेंजमेंट्स हैड बीन डन फॉर। तो वो लोग वहां पे चले गए। चले जाने के बाद में उन्होंने एम्बेसडर से कहा कि हमारे फॉरेन सर्विसेज के जितने भी लोग हैं, इनके बच्चे हैं यहाँ, कहाँ आए, छुट्टियां भी हैं, सभी बच्चों को बुलाओ। सभी बच्चों को बुलाया गया और वैसे भी जब प्राइम मिनिस्टर आने वाले होते हैं तो फॉरेन सर्विसेज के जो फैमिलीज होती हैं, दे आर ऑल लाइक देयर टू मीट एंड ग्रीट, वेलकम एंड सो ऑन सो। तो बच्चों को बुलाया गया और मिसेस गांधी जो है उनके साथ में गार्डन में थी।
और वहां पर में यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट है वो वेट कर रहे हैं टू मीट मिसेस गांधी. शी सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ इंपॉर्टेंट कंट्री और आप मुझे वेलकम करने के लिए एक जूनियर मिनिस्टर को भेजते हो. These are things that signal importance that we attach. तो अगर आपको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं है हमारे तो फिर आपको बुलाना ही नहीं चाहिए. आगे बात समझ में आती है? ठीक है. They understood their mistake and later apologized for it. मिसेस गांधी ने कहा कि ये मेरे पर्सनल इसकी बात नहीं है. It's not about me as an individual. It is about the prime minister of that country. ये उस पोस्ट की यानी मेरे देश की बात. ये मतलब ये मत समझिए ये एरोगेंस हो गया. एरोगेंस नहीं है. ये देश की मर्यादा की बात उन्होंने इंश्योर किया. बात समझ में आई आपको? यस नो काइंड से दिस इज द विजडम ऑफ द लीडरशिप. रोहित को बुलाना बाहर ही है. देखो ये नहीं चल रहा ना इन्होंने. ठीक है रोहित भी इसको ऑन कर रहे. The next point related to the leadership वाला ही is the quality of a country's diplomacy. उस कंट्री की डिप्लोमेसी जो है वो कितनी प्रोफिशिएंट है. There are some countries who have developed a very powerful diplomatic corps. Israel is a great example of that. Even India for that matter, we have a very strong diplomatic service. If you have a strong diplomatic corps, then automatically your national power increases. If you have, competent people, ये क्या है रोहित? मार गया हट गया. ठीक है. The strength of your diplomacy, मतलब आपके पास में कितने ऑफिशियल्स हैं who are posted across the countries. And secondly, the kind of quality that they bring. This matters a lot. India being a big country, economically more powerful, and also we've had very good talented diplomats. और मैंने देखा है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल ये ऑब्जर्वेशन है, वो कंट्रीज जिनका पुराना सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, उनके यहाँ पर में आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी हमेशा से रहा, क्योंकि हमेशा से इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स रहते थे ना. So in countries का diplomatic corps बहुत अच्छा होता है. Iran, for example, has a very good diplomatic corps. India has it. China has it. Okay? Because there is this traditional practice that has come down. So this quality of your diplomacy also adds to your national power. Okay? So we were seeing what? We are seeing the elements of national power. We saw first elements related to natural aspects. Second was science, technology, industry, and third is regarding political aspects. Next, social and ideological elements. Yes. यूएस के केस के अंदर में क्योंकि वो एक हेजेमॉन है, इसलिए यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो पर्सनली जाकर के मिलना इसका बहुत वो रेयर है. आने वाली कंट्री का जो हेड ऑफ स्टेट है वो कंट्री कितनी पावरफुल है, यूएस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वही एक्सेप्शनल केसेस के अंदर में ही यूएस प्रेसिडेंट विल डू. अदरवाइज दे विल सेंड सम इंपॉर्टेंट मिनिस्टर. I don't remember who had welcomed Indian Prime Minister at airport, but it will certainly be somebody who is politically speaking important over there. Most probably it will be the Vice President or somebody more important like maybe your Foreign Affairs Minister, जिसको वो Secretary of State कहते हैं. ऐसा कोई पर्सन, टॉप नॉच पर्सनैलिटी ही वहां पर में रहेगी. तो वो लोग कैसे है ना, वो अपना स्टेटस हमेशा मेंटेन करके रखते हैं. Yes, you are close, you are important, we'll greet you very well, we'll give you that respect. Donald Trump walked hand in hand with Prime Minister Modi at that, Howdy Modi, what was that? वो चीज होगी,
लेकिन वो लोग भी अपना थोड़ा सा, यस वी आर क्लोज, बट देन फिर भी आप थोड़े से हमसे जूनियर हो, ये एम्फसाइज हमेशा करें। सऊदी इंडिया की जो रिलेशनशिप है यूएसए के साथ में, ये ब्लॉसम हुई है फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 98 में तो उन्होंने हमारे ऊपर में सैंक्शंस लगाए थे, उससे पहले कोल्ड वॉर के अंदर में हमारा प्रो यूएसएसआर ट्रेड था, लेकिन सऊदी और ये जो कंट्रीज हैं, ये लोग बहुत पहले से यूएसए के स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, ओके। एंड देन दे हैव बिग इन्वेस्टमेंट्स बोथ वेज। यूएस का वहां पर में आर्म फोर्सेस का प्रेजेंस है, सो इंपॉर्टेंस अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली सऊदी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पूरे रीजन के ऊपर में कंट्रोल। और दूसरी चीज जो आपको समझना है, सऊदी का रोल एज अ हेगेमॉन इन द मुस्लिम वर्ल्ड, इट इज बीइंग चैलेंज्ड बाय टर्की, लेकिन फिर भी सऊदी आज भी जो है मुस्लिम वर्ल्ड, स्पेशली सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर में सऊदी हैज अ प्री एमिनेंट पोजीशन। उसका भी एक अपना नेशनल पावर है बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स, इंक्लूडिंग प्रेजेंस ऑफ मक्का मदीना होली साइट्स। चलिए अब देख रहे हैं सोशल एंड आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स। आइडियोलॉजी ऑफ अ कंट्री also adds to its national power. मैं शायद आपको पहले ये कोट मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर में बताया होगा। People do a lot for money. They do even more for leaders. They do the most for ideas. Ideology, अगर आपकी कंट्री स्ट्रांगली किसी आइडियोलॉजी के ऊपर में बेस्ड है, जैसे यूएसएसआर, the entire nation was born, रशियन रेवोल्यूशन में से सब बना है नहीं, इट वाज बोर्न ऑन अ सर्टेन आइडियोलॉजी, ओके। इससे क्या होता है कि आपकी जो कमिटमेंट होती है सिटीजंस की टू मेक दैट आइडियोलॉजी सक्सेसफुल, वो बहुत हाई होती है। यूएसएसआर जर्मनी के सामने क्यों पैर गाड़ के खड़ा हो सके वर्ल्ड वॉर 2 में? हिटलर ने पूरी ताकत झोंक दी थी, वेस्ट यूरोप तो पूरा उसके पास में था, ब्रिटेन के साथ में युद्ध थोड़ा स्लो हो चुका था, and Germany was fully concentrating only on winning 3 cities, Moscow, Leningrad and Stalingrad। लेकिन रशियंस कस्टमर्स नहीं है, क्यों नहीं हुए? बिकॉज ऑफ दैट आइडियोलॉजी। आई एम नॉट फाइटिंग फॉर माई सेल्फ, मी स्वतःसाठी लढत नाही, आई एम फाइटिंग फॉर समथिंग बियॉन्ड मी। ये जब आपके अंदर में लेवल ऑफ कमिटमेंट आ जाती है तो आप किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, सुपर ह्यूमन आप बन सकते। यकीन नहीं आता? मराठास का इतिहास उठा के देखिए, छत्रपति संभाजी महाराज वाज एग्जीक्यूटेड, राजा नहीं है, तख्त नहीं है, कुछ नहीं है, बट पीपल वर फाइटिंग एंड औरंगजेब कुड नेवर हैव फुल कंट्रोल ऑफ द रीजन। वही कंपैरेटिवली देखिए, कुतुब शाही और आदिल शाही बहुत पावरफुल किंगडम्स थे, आर्मी और पैसे के टर्म्स में दे आर मच मोर पावरफुल, but Aurangzeb was able to subdue them in the traditional way, but not this region. Why so? And here lies the biggest greatness of Chhatrapati Shivaji. He was able to breathe those ideas into people. हे माणसाचं खरं त्याचं ग्रेटनेस असतं, ठीक आहे? He is not there, ठीक आहे? But those ideas remain alive. Now, this is not to draw an adverse comparison. Each person is great in his own right. But you see, Maharaja Ranjit Singh, in his lifetime, Maharaja Ranjit Singh is also a very successful ruler. He has established his kingdom. Even the East India Company has to take note of it and have friendly relations with him. But what happens after him? Relatively, if you see, that same kind of energy is not shown as it was seen in case of Marathas' resistance to Mughals. Now, by Marathas, please don't get me wrong, I don't mean caste person. Marathas means people living in this part of the world. Are you समझ में? That is your ideology. Vietnam के लोग, they fought USA for almost 2 decades. USA जैसा सुपर पावर ऊपर से बॉम्ब डाल रहे हैं। वियतनाम पे अकेले पे जितने बॉम्ब डाले गए, अकेले वियतनाम पर, that was equal to the tonnage of all the bombs dropped across World War II. मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में गिरा हुआ हर एक बॉम्ब अगर आप एड अप करेंगे तो जितना उसका टनेज बनेगा उतना सिर्फ ये छोटे से वियतनाम पे ड्रॉप किया, बट दे डिड नॉट गिव अप। व्हाई? आइडियोलॉजी।
Getting this point? Communist ideology. Next two concepts are very crucial: national morale and national character. National morale and national character. So it's interrelated concepts. National morale means what you are ready to sacrifice for your country. Citizens के अंदर में, वहां के लोगों के अंदर में क्या जज्बा है अपने देश के लिए कुर्बानी देने का. जॉन कैनेडी ने कहा था ना, don't ask what America can give you, ask what you can give to America. तो वो जो स्पिरिट है कि मेरे देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे कुछ, अब मेरी बारी है मेरे देश को देनी. दैट इज योर नेशनल मोरल. क्या आपकी कंट्री में है वो चीज? जापान के अंदर में देखिए, वर्ल्ड कप चल रहा था और जापानीज टीम जो है, फुटबॉल वर्ल्ड कप लास्ट वाला, जापानीज टीम वाज डूइंग वेल. और जापानीज जो फैंस थे, ये अपनी टीम के साथ में सपोर्ट करने के लिए, चीयर करने के लिए घूमते रहते थे सभी स्टेडियम्स में. जब मैच खत्म हो जाता था, तो जापानीज फैंस जो है पूरा स्टेडियम साफ करके जाते थे. क्या करके जाते थे? पूरा स्टेडियम साफ करके जाते थे. मतलब वहां का लोकल पब्लिक चला जाता था. जापानीज पीपल स्टेट बैक. यकीन नहीं आता है? आप उठा के देख लीजिए, सारे रेफरेंसेस आपको मिलेंगे. पूरा स्टेडियम साफ करके जाते. सेमीफाइनल तक आई थिंक गया था जापान, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. और वहां से अब आप जानते हैं कि जब आपकी टीम इतना आगे जाती है तो एक इमोशन होता है, यू नो, यू वांट योर टीम टू विन. और फिर जब टीम हार जाती है, जैसे भारत हारा सेमीफाइनल, हंसने की बात नहीं है, तो क्या हुआ, इलेक्शन लगता है ना यार, थोड़ा सा मन वो हो जाता है. उस दिन भी उन्होंने वो चीज नहीं छू. इवन ऑन दैट डे दे डिड दैट एक्सरसाइज. सो ये स्पिरिट है क्या आपके लोगों में? और हमारे यहाँ क्या होता है, तेजस नाम की ट्रेन निकाली थी, उसमें एलईडी स्क्रीन्स लगाए थे. तेजस पूरी एयर कंडीशन ट्रेन, एलईडी स्क्रीन्स, एयरपोर्ट वाली, एरोप्लेन वाली सीट्स, लोग उसको टीवी समझ के निकाल के ले जा रहे हैं. उसको निकाल के ले जा रहे हैं. अच्छा, वो हुआ नहीं, वो इतने अच्छे से बिठाए थे कि वो निकल नहीं रहे थे. तो गुस्से में लोगों ने खिड़कियों के शीशे तोड़े कि ये क्यों नहीं निकल. किसका नुकसान होगा? ये जापानीज लोग वहां दूसरे के स्टेडियम जाके साफ, और ये हमारी अपनी ट्रेन, तुम्हारे टैक्स के पैसे से बनी है. चलो इनकम टैक्स नहीं भरते होंगे, इनडायरेक्ट जीएसटी तो देते होंगे. 5 रुपए का पार्ले जी भी दिया तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है. सो यू आर कंट्रीब्यूटिंग. गेटिंग दिस? कैन यू सी द डिफरेंस? मोरल. नेक्स्ट इज नेशनल कैरेक्टर. वो कुछ चीजें जो आपको एज ए नेशन डिफाइन करती, वो वैल्यूज, वो वर्च्यूज जिससे आपकी पहचान बनती है, वो कहलाता है नेशनल कैरेक्टर. जैसे इफ यू गो टू ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर में लिबरलिज्म, ये उनके नेशनल कैरेक्टर का पार्ट है. okay? वो लोग कभी भी जिंगोइस्टिक नहीं होंगे. पेट्रियोटिक है, जिंगोइस्टिक नहीं है. मेरा देश जिंदाबाद, लेकिन दूसरा उसके लिए मुर्दाबाद, ये नहीं. अगर उनके खिलाफ में भी मैच होती है लॉर्ड्स पर और ऑपोजिट टीम का प्लेयर सेंचुरी लगाता है, तो ब्रिटेन के लोग उसको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, सेंचुरी माना ऐसा. ये उनकी पॉलिटी की मैच्योरिटी है. दिस इज एन कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश पीपल. अमेरिका आप चले जाएं, अमेरिका में यू विल सी अ लॉट ऑफ इंडिविजुअलिज्म, इंडिपेंडेंस. 17-18 साल के हो गए नहीं कि बच्चे घर में नहीं रहते, दे वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट. वो नहीं जाएंगे तो माँ बाप लात मार के निकालते, बहुत पोस्ट लिया तुमको, अब यू फेंड फॉर योरसेल्फ. व्हाई? बिकॉज इंडिविजुअलिज्म. पेरेंट्स, हमारे यहाँ पेरेंट्स कैसे आयुष्य वाहन तक ले रहे, पढ़ाई लिखाई करवाई, शादी ब्याह करवाया, अब बच्चों की नैपिया भी चेंज कर रहे हैं, सब कुछ एंड तक करेंगे. क्यों? तो बच्चों के लिए दिल धड़कता है. वहां के पेरेंट्स क्या बोलेंगे, तुम जब डिपेंडेंसी में थे उस वक्त में किया, अब हमारी भी अपनी लाइफ है, ठीक है, मुझे अपना करियर परस्यू करना है, मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करना अपने हिसाब से. दैट इज इंडिविजुअलिज्म ऑफ लिबर्टी. यू अंडरस्टैंड दिस? सो ये होता है हर कंट्री का कुछ स्पेसिफिक नेशनल कैरेक्टर. अफगानिस्तान, दे लव टू फाइट, ठीक है, या तो वो बाहर के किसी आए हुए एनिमी के साथ में लड़ेंगे, नहीं तो आप आपस में लड़ेंगे, पर वो लड़ेंगे. तो ये सेंचुरीज का फिल्टर डाउन एक्सपीरियंस है उनका फाइटिंग, जनरेशन डाउन टू जनरेशन. वो लोग वही चीज कर रहे हैं. सो दे आर वेरी गुड एट इट.
उनकी यूएसपी है, इसलिए उनसे पंगा नहीं लेने का, आपस में लड़ने तो चाहिए। समझ आए आपको ये? हाँ ठीक है, इंडियन कैरेक्टर के अंदर में भी हमारे यहाँ पर में बहुत सारी चीजें हैं। पॉजिटिव अगर हम कहेंगे तो हमारे यहाँ पर में कुछ बहुत अच्छे ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज, अतिथि देवो भव, ब्रॉडली स्पीकिंग, ठीक है। अगर आप देखें किसी भी मार्केट के अंदर में कोई गोरा आदमी गुजर रहा है, गोरी औरत गुजर रही है, पीपल विल गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प। गरज नसेल तरी तिची मदत करायची का आपल्याकडे अतिथी आले। तो ऐसे बहुत सारे कल्चरल वर्च्यूज हमारे यहाँ पर में भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सब बुराई है, मैं कभी कभी थोड़ा मजाक में ज्यादा क्रिटिसाइज किया। एक बार एक क्लास के अंदर में एक टीचर ने बच्चों से कहा कि यू शुड डू गुड डीड्स, कैरेक्टर से बात निकली थी, आपने अच्छे काम करना चाहिए। बच्चों ने पूछा कैसे काम करना चाहिए, कहा कि किसी विकलांग की मदद कर दो, किसी बूढ़े आदमी की मदद कर दो, ये करो वो करो। क्लास खत्म हुई, दूसरे दिन वापस क्लास हुई तो एक बच्चे ने हाथ ऊपर करके कहा कि मैडम आपने जो कहा था वो मैंने किया। क्या किया? तो मैंने एक बूढ़ी औरत की मदद की। टीचर पूछते क्या क्या किया आपने? उसने कहा मैंने और मेरे 12 दोस्तों ने मिलकर के बूढ़ी औरत को रास्ता क्रॉस करवाया। तो फिर टीचर बोलती है अच्छा बहुत काम तो तुमने बहुत काबिल तारीफ किया है, लेकिन ये तुम अकेले भी कर लेते, 12 दोस्तों को क्यों बुलाया? उसने कहा था वो आ ही नहीं रही। आपने पूछा था इससे मुझे याद आ गया। नेशनल मोरल कैरेक्टर कुछ समझना है आपको? इसके बाद में सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल कोहेसिवनेस। यस, कैन वी? Yes, certainly it can be done. See, what kind of role models do you have? What kind of cultural heritage do you focus on? What kind of education system do we promote? कौन सी चीज, कौन से टाइप के बिहेवियर जो है वो सोसाइटी और स्टेट द्वारा जो है वो अप्रिशिएट किए जाते हैं, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और पनिश किए जाते हैं, इस पर वो बनता है। हमारे यहाँ क्या होता है सोसाइटी के अंदर में, अगर आपने लॉ तोड़ा, सिंपल, ब्रिटेन के अंदर में जो है ना, अगर आप रॉन्ग साइड से गाड़ी लेके जाइए, मतलब लोगों के एक्सपीरियंसेस बताओ, आप रॉन्ग साइड से गाड़ी लेकर के जाओ या आप कुछ ऐसा उल्टा सीधा छोटा भी अगर आपने लॉ ब्रेक किया ना, तो 4 लोग जमा हो जाएंगे एंड दे विल स्कूल यू। अक्ल नहीं का तुला, क्या ऐसा करते हो? क्या हो गया? आपके ऊपर प्रेशर बना टू फॉलो दैट। सो द बिहेवियर इज नॉट बीइंग रिवॉर्डेड। हमारे यहाँ पर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, फॉरवर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, तेजिंदर खन्ना ऐसा कुछ उनका नाम है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी, आज से 10 साल पहले की बोल, तेजिंदर खन्ना उस वक्त। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पर में कल्चर ऐसा है कि जो लॉ ब्रेक करता है सोसाइटी उसको ग्लोरीफाइड तरीके से देखती कि ही कैन डू दिस एंड गेट अवे विद इट, मतलब बहुत बड़ा आदमी। और फॉरेन कंट्रीज में क्या है ना, एग्जैक्ट ऑपोजिट, सोसाइटी विल लुक डाउन अपॉन, द स्टेट विल पनिश। तो क्या होता है, वो मोरल जो है वो डेवलप होता है। तो फिर आपकी भावना बनती है कि आप जो है वो खुद देश के लिए, नेशन के लिए जो है वो कुछ करें। सो कल्चर, हिस्ट्री, एजुकेशन, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स, ये सारी चीजें उसके अंदर। And social structure and social cohesiveness. Social structure and cohesiveness. आपने हिस्ट्री सब स्कूल के जमाने से पढ़ी है, and I'm sure at some point you would have thought that India suffered from so many foreign aggressions, and many of the times, very often, it fell to it. ऐसा क्यों होता रहा? Why did it happen? We are a settled civilization, so naturally we had more population, more resources. But we could not defend. Why was that so? The reason was the kind of social structure that we had. Only a small elite had the right to wield weapons. सिर्फ राजपूत ही जो है वो तलवार उठा सकता था, बाकी लोग नहीं कर सकते वो चीज। सोशल स्ट्रक्चर कैसा था हमारे यहाँ? स्ट्रेटिफाइड था। सोशल कोहेसिवनेस था कि नहीं, अगर एक तबका दूसरे तबके के ऊपर में एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, इगैलिटेरियन की भावना नहीं रखता है, तो आपस में कोहेसिवनेस कैसे बने? ये आपके नेशनल पावर को अंडरमाइन करता है। अगर नहीं है, अगर है
तो वो आपको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। आज भी देखिए जिस किस्म की सिचुएशन बन रही है, बहुत सारे, अच्छा मेरा खुद का ओपिनियन नहीं, a lot of retired senior bureaucrats have written to no less than the prime minister himself that constantly आपके लोग और मीडिया जो है वो डिविजिव टाइप का पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जब हम ऐसी सिचुएशन में हैं, चाइना के साथ में सीरियस थ्रेट, पाकिस्तान के साथ में तो पेरिनियल प्रॉब्लम है ही हम, ठीक है, तो ऐसे में हमारी स्ट्रेंथ जो है वो हमारे देश के अंदर की कोहेसिवनेस, लेट अस नॉट डिवाइड, लेट अस यूनाइट, ठीक है, सो वो चीज कोहेसिवनेस और सोशल स्ट्रक्चर आपका, ये भी आपके नेशनल पावर पर ऐड करता है। इमेजिन कीजिए सिर्फ आज की डेट में अगर आप राजस्थान का पॉपुलेशन देखेंगे, राजपूत जो है वो लार्जली, वैसे तो पूरे उत्तर भारत में, लेकिन राजस्थान यू नो इज वेल नोन फॉर राजपूत रूलर्स एंड देयर हिस्ट्री। तो आज भी अगर देखेंगे तो 10 से 14% की रेंज के अंदर पे राजपूत पॉपुलेशन, मोटा मोटा मान के चलते कि उस जमाने में भी यही रही। तो 80-85% of the population is actually not effectively deployed for defense of the country. अगर ये डिप्लॉय होता, यूटिलाइज होता इफेक्टिवली, तो स्टोरी कुड हैव बीन डिफरेंट। एग्री करते हैं आप इस चीज से? सो सोशल स्ट्रक्चर एंड कोहेसिवनेस। नाउ लेट अस सी एक्सटर्नल एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। पहला है रेपुटेशन एंड इमेज। ये दोनों मिलते जुलते कंसेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस है। रेपुटेशन इज व्हाट यू आर नोन फॉर, तुमची ओळख काय आहे, and image is how people look at it। Similar sounding है, लेकिन थोड़ा सा difference। Reputation is what you are known for, and image is how people look at it। Your reputation has a big impact, positive or negative, in all your interactions with the world। Let me give you a few quick examples over here। एक आईएएस ऑफिसर है श्रीकर परदेशी, नाम सुना हो? अब ये इंटरनल आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर के लोगों ने जो बताई हुई चीजें वो मैं बताऊं। देयर वाज अ पर्सन हु वाज वेरी करप्ट इन द सिस्टम, इतना करप्ट कि दूसरे करप्ट लोग उससे परेशान। जैसे ही श्रीकर परदेशी गॉट अपॉइंटेड ओवर देयर, दिस पर्सन कॉल्ड अप हिमसेल्फ his appointment made such a big difference on this। अब ये एक स्टोरी है, colloquial स्टोरी है, but it tells you the point कि आपकी जो रेपुटेशन है, that a no nonsense officer is now there in charge, ठीक है? वो रेपुटेशन इंग्लिश में मुहावरा है ना, your reputation precedes you। आप बाद में पहुंचते हो, आपकी ख्याति पहले पहुंची हो। your reputation precedes you। so इससे क्या होता है, अगर आपकी एक टफ नट की रेपुटेशन है तो कोई आपसे पंगा लेने से पहले 4 बार सोचेगा, ठीक है? अनलेस इट इज रियली रिक्वायर्ड, नोबडी विल मेस विद यू। दैट इज योर रेपुटेशन, ठीक है? और उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है इमेज। मोटा मोटा ब्रॉडली दोनों टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। नेक्स्ट इज द फॉरेन सपोर्ट दैट वन हैज, द काइंड ऑफ फॉरेन सपोर्ट दैट अ नेशन हैज, दैट आल्सो एड्स टू इट्स नेशनल पावर। You see, in our neighborhood, Pakistan enjoyed the support of USA during Cold Wars. It was part of many of its pacts, SEATO, CENTO, so on and so forth. And that added to Pakistan's national power to deal with India। से 1965 में जो जंग हुई थी, उसके अंदर में पाकिस्तान को जो भी मिलिट्री एडवांटेज था, that was because of American war equipments, especially pattern tanks। so Pakistan की अपनी power supplemented by support of USA, that adds up to its national power। this is how foreign support is used। recently if you see Sri Lanka and some other South Asian countries used to feel that India was having a big brotherly attitude in this region। ये reality है ना, तो हमने किया नहीं है, हम ऐसा बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनका ये परसेप्शन रहा है, ये भी उतनी रियलिटी। और याद रखना, फॉरेन पॉलिसी या आईआर के आंसर्स के अंदर में यू आर नेवर सपोज टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी और अप्रोच। सेफ बेट इज टू स्टैंड बाय व्हाट आर ऑफिशियल
लाइन पीस। वहां पर मैं बहुत इंटेलेक्चुअल गिरी झाड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, स्टे सेफ। ठीक है, सो श्रीलंका ने क्या किया? ओवर द रिसेंट डेकेड्स इंक्रीजिंगली इट ट्राइड टू यूज चाइना फॉर काउंटर बैलेंसिंग इंडिया। फॉरेन सपोर्ट यूज कर रहा था। नाउ दैट हैज बैकफायर्ड इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट श्रीलंका वाज ट्राइंग टू डू दैट। So did Maldives, so did बांग्लादेश। म्यांमार ने भी कुछ हद तक इस चीज को किया है। तो ये क्या होता है? This is the using of foreign support to add to your national power. Not that we did not do it. We also had support of USSR at critical points. We also done. Then international strategic position, where you are located. You see the case of India, we are very strategically located. We are there on the cusp of Indian Ocean with a very long coastline. We are connected to China also on the, on one side of our border. We have access, Pakistan अगर आप फिलहाल के लिए ध्यान में डालें, हमको access है जाने के लिए towards Central Asia also. So geographically speaking, strategically speaking, India has a very, very good location. And that is what makes it so important for USA. And India being a landlocked country somewhere deep inside in the Asian continent, then USA would never have been so keen about India, or for that matter, other countries of the world. So our strategic location also adds to our national power. Take the case of Afghanistan, one more example. Afghanistan is surrounded by so many countries. ऊपर में सेंट्रल एशियन कंट्रीज की कितनी सारी बॉर्डर्स जुड़ी हैं। वेस्ट में ईरान है, नीचे में पाकिस्तान है, और हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर पीओके जो है ना, उसका कुछ पार्ट भी अफगानिस्तान से कनेक्टेड, अगर आप मैप में क्लोजली देखें। सो इट इज कनेक्टेड विद सो मेनी डिफरेंट कंट्रीज। इसीलिए उसको कहा जाता है हार्ट ऑफ एशिया। क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ एशिया। देयर यूज्ड टू बी अ कॉन्फ्रेंस called as Heart of Asia Conference, where developments of Afghanistan were taken up by other regional powers, India, Russia, China, all of these powers. So आपका location बहुत मैटर करता है। यहाँ तक बात समझ में आई आपकी? Next is your intelligence. Your intelligence does not mean your IQ. Intelligence means your ability to gather information which is strategic and act on it. That is intelligence. Having the right sort of information and taking proper decisions based on it can make a sea change in your outcomes. I'll give you a small example here. Indian National Congress leaders tried to avoid partition to the extent possible. But when it became clear that Muhammad Ali Jinnah was adamant to have his Pakistan, Indian National Congress leaders finally gave up and agreed to partition. After a few months, Jinnah died and people realized that he was suffering from terminal TB. Okay? That is, his days were numbered. And this piece of information was closely kept a secret by Jinnah and his doctor. His doctor did not tell this information to anybody, that it is only a matter of days and he is going to pass away. Had this information been known to Indian National Congress leaders then, obviously they would have delayed the call. हो सकता था नहीं? Okay? So one piece of information can have such a big bearing on the outcome. World War I, Germany and Russia are fighting. Germans come to know that a Russian man, V.I. Lenin, is there in Switzerland who wants to bring about a revolution in Russia. Intelligence mila. What do? They arrange for a special secret train and take him from Switzerland and leave him on the borders of Russia. Go do your revolution. उसने जाके क्रांति कर दी, रशिया वॉर में से बाहर निकल गया। ठीक है, इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस क्या है समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? ठीक है,
तो ये आपकी जो एबिलिटी है इंटेलिजेंस गैदर करने की, प्रोसेस करने की और उस पर एक्ट करने की, ये आपके नेशनल पावर को डिफाइन करती है. दिस इज व्हाई अमेरिका स्पेंड सो मैसिवली ऑन CIA जैसी एजेंसी. Pakistan has ISI. We also have a great agency like RAW. And RAW over the years, इनका काम जो है ना वो थोड़ा सा फुटबॉल के गोलकीपर की तरह होता है. These external intelligence agencies. ये जब गोल लुकाते हैं तो वो किसी को पता नहीं चलता, ये समझ में नहीं आता उसके. Only when they are not able to do it or they fail by small margin, that is when we realize this. So their efforts are like thankless efforts. Nobody will come to know what they have done. But world over, it is recognized that Indian External Intelligence Agency is a very crack, very professional agency. And even Pakistan ISI is known for its dirty tricks. Yes, see, statecraft, that is a part, and they do what they do. Okay? So India and its rival, they have invested a lot. अच्छा, Parliament में, by the way, जब budget का session होता है, उस वक्त में are spending on these activities. They are not discussed. They are only certified. कि इतना अमाउंट जो है वो हमारे ये एक्सटर्नल एजेंसीज के लिए इट हैज बीन प्रोविजन. क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, ऑल ऑफ दैट इज नॉट इन पब्लिक डोमेन. ठीक है, बिकॉज यू हैव टू डू, अ स्टेट हैज टू डू मेनी थिंग्स व्हिच आर नॉट फॉर पब्लिक कंजम्पशन. ठीक है, यू हैव टू हैव टॉप नॉच इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड एक्टिंग कैपेसिटी. ऑल ऑफ दिस एड्स टू योर नेशनल पावर. तो नहीं आता. So we have seen the elements of national power. Sorry, we have seen what derives your national power. Now let us see what are the limitations of national power. See, मराठी में कहते हैं इतिहासाला जर जागा नसते. There's no place for ifs and buts in history. But even if speculatively we think over it, then naturally our founding fathers would have held on for some more time. See, they tried, but there was a point where they felt that in any case Jinnah is not going to budge, and it will. The more we delay this, the more the mayhem will be. So that's why they finally gave up upon it. Let him have his Pakistan, and at least we can start with our Hindustan. That was the idea. Had they known it, naturally they would have delayed it further, so that their bargaining position with Jinnah would have improved. Okay. Now, Jinnah has used this. It will take me on a very different track. But since you've asked it, so let me give you a quick answer to it. First time the idea of Pakistan was mentioned in Lahore Resolution, Muslim League. But from that point till 1946, when the actual voting is going to take place, इस time तक Muhammad Ali Jinnah has never very clearly defined what is his idea of Pakistan. He only is trying to give a bogey that in a future democratic country, the rights of minorities will be suppressed based on numbers, and therefore we want to have a separate state and only trying to build legitimacy around that. And to quote him, he used to say that Congress is a party of the caste Hindus. It does not represent Muslims. और Muslims के लिए the sole spokesman, his words, sole spokesman is Muhammad Ali Jinnah. ठीक है? And based on this, he tried to build up a environment of fear psychosis amongst Muslims that the next elections, that is 1946 वाला elections, this is going to be the decider. क्यों? क्योंकि 46 में जो असेंबली के इलेक्शंस हो रहे थे, स्टेट इलेक्शंस, उसमें इलेक्टेड MLAs, अब मैं आज के टर्म्स यूज कर रहा हूं so that you can relate to. They were going to elect members of the constituent assembly. ठीक है? So there were, primarily two types of seats, general seats and Muslims के लिए separate seats. There were other communities also, लेकिन हमारा discussion अब यहाँ पर है, इसलिए हम इस पर फोकस करें. So Muhammad Ali Jinnah जहां भी Muslim seats थे, his party, their campaign was
that इस इलेक्शन में if you don't send Muslim League का representative, कांग्रेस भी अपना मुस्लिम कैंडिडेट फील्ड कर रही है और मुस्लिम लीग अपना कैंडिडेट फील्ड कर रही है, एंड मुस्लिम लीग इज टेलिंग द मुस्लिम्स दैट इफ यू डोंट सेंड अस देन कांग्रेस का वर्चस्व रहेगा, कांग्रेस का डोमिनेशन रहेगा और वो अपने हिसाब से संविधान बनाएंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करने वाले हैं, एंड देन योर राइट्स विल बी सर्कमस्क्राइब्ड. सो फॉर दैट रीजन वोट फॉर मुस्लिम लीग. So in that sense, the vote that it got in 46 was more about the constitution rather than the demand for the state. But Jinnah used it very cleverly. He made it like a referendum. He said, see, in this election, 1937 election, Muslim League को कहीं भी support नहीं मिला Muslim seats पर. और 1946 के election में मराठी में कहते हैं ना, दो मतदान. So he says, see, this represents my claim that I am the sole spokesman for Muslims in the Indian subcontinent, and my demand is a separate state for Muslims, that is Pakistan. So that's how it all panned out. Okay. Since that is not my subject, modern India, तो मैं और technicalities में नहीं जाना चाहता हूँ. I think that gives you the answer. Are the spies paid well? Okay. There's no way to know it, how they are paid as such, because of course all of that is not there in public domain. But one would presume that they are taken good care of, considering the, national security being involved over there, the importance of that task. So this is my conjecture. I can't say for sure, definitely. But surely there's no James Bond. I can say you that much. Who's going about in 5-star hotels and living a merry life. That does not happen. चलिए next देख रहे हैं अभी हम limitations on national power. तो कंसेप्चुअली जस्ट मुझे फिर से थोड़ा सा लोकेट करवाने दीजिए आपको. हम लोग वेस्टफालियन स्टेट सिस्टम की कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, where all the nation states are sovereign and all the nation states try to develop their national power. Do we have any international government as such? No, there's no concept of international government. So सभी इंडिपेंडेंट है, सभी सॉवरेन है और सभी के पास नेशनल पावर है. तो ये तो बड़ी एनार्किक और मुश्किल सिचुएशन बन सकती है. इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता. ठीक. तो इसके कंट्रोल के लिए नेशनल पावर पर कुछ ऑटोमेटिक लिमिटेशंस जो है वो बनाएगी. अ कंट्री कैन नॉट यूज इट्स नेशनल पावर आर्बिट्ररी. शक्ती आहे म्हणून ती कशीही वापरता येत, बिकॉज देयर आर सम लिमिटेशंस दैट एक्ट अपॉन इट. और क्या है ये limitations? That is what we are seeing. First limitation in that is international morality. नैतिकता. ठीक है. See, you must appear to be, your acts must appear to be moral and ethical. Howsoever powerful you might be, if your acts don't appear to be moral and ethical, then there will be a baggage always attached with you. People will not trust you later. And no country wants that with itself. मैं just यहाँ पर एक politics से example दे रहा हूँ, just to make you understand. Who is the most highly regarded or most powerful politician from Maharashtra? Consensus? Everybody agrees on this? ठीक है. Irrespective of which side of the divide you are on, one would say this is so. Now, there is one episode from his life which continues to be a baggage. Which episode is that? The way he had brought down Vasantdada Patil's government. बराबर है ना? ठीक है. Now, that one episode was seen to be as unjust or maybe borderly immoral also. And that has not left him even after several decades being passed. So when you are playing the game of power, you still have to be very conscious about how your actions will be perceived. Okay? If your actions are perceived as illegitimate, immoral, then forever you will have to carry that baggage with you. People will always have second thoughts of what your next move will be. ये चीज होती है प्रैक्टिकली. ठीक है.
बाकी आपके बहुत और अच्छे काम होंगे, लेकिन अगर आपका ऐसा कोई एक्ट है, कोई एक्शन है, तो वो आपकी लेजिटिमेसी को अंडरमाइन कर सकता है. अमेरिका, फॉर एग्जांपल यूएसए, द वे इट हैज डेल्ट विद इराक, इराक को जिस तरीके से डिवास्टेट किया गया और उसके अंदर में से आइसिस पैदाइश कहां से हुई है? That ecosystem was created by the ravage that America wreaked on Iraq. ठीक है? इसकी वजह से इंटरनेशनली अमेरिका ऑलवेज हैज टू कैरी दैट बैगेज. होता है कि नहीं होता ये चीज? Do you agree with this? There was a demand that Britain should tender an official apology for Jallianwala Bagh massacre. ठीक है, वो कंट्री जो लिबरलिज्म का गढ़ है, उस कंट्री ने ऐसा मैसेकर किया है, उसने अपॉलॉजी देनी चाहिए. डेविड कैमरून ने अपॉलॉजी नहीं दी, लेकिन रिग्रेट एक्सप्रेस किया. अपॉलॉजी क्यों नहीं दी? क्योंकि इतने काले काम कर चुके हैं ये लोग. अगर एक जगह अपॉलॉजी दी तो अगले 25 साल तक देते ही रहेंगे. ठीक है, सो वो तो नहीं हुआ. लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो बैगेज जो है वो छूटा है क्या? नहीं. आफ्टर अ सेंचुरी और मोर still people attach it. So international morality acts as a limitation on your national power. Okay, one. Number two is world public opinion. कोई एक्ट आपका भले से सही हो, लेजिटिमेट हो, लेकिन अगर काउंटर पब्लिक ओपिनियन उसके बारे में बन जाता, तो इट कैन कॉस्ट यू वेरी हेवीली. टेक द केस विद वियतनाम. During the Vietnam War, if you see initially, both the sides have erred equally. But subsequently, जब अमेरिका वॉर का प्रेशर बढ़ाते जाता है, तो पब्लिक ओपिनियन यूएस के खिलाफ में बना, और दूसरी साइड्स की गलतियां जो है वो नहीं देखी जाती. The more powerful you are, the more your mistakes will be held up. आपके घर में भी जब लड़ाई होती है बड़े भाई और छोटे भाई में या भाई बहनों में, तो जो बड़ा है उसको ज्यादा अकाउंटेबल माना जाता है ना. तू तो मोटा होता है ना, तू लगता है you can behave properly. So with more power comes more responsibility also. You have to be conscious about world public opinion. Number two. Number three is international law. There are many international treaties, rules, regulations, many international institutions जिनके अकॉर्डिंग आपका कंडक्ट शेप होना चाहिए. If you violate these treaties, then again your national power is going to get affected. Just because you can do it does not mean that you should do it. Take the example of India and Bangladesh. We had a dispute over our maritime borders. We took that issue to the tribunal under UNCLOS, United Nations Convention of Law on Sea. And the award went in Bangladesh's favor. India accepted that. Now, India is a much more powerful country. We have helped Bangladesh to a great extent. India could have said that Bangladesh, you know, आप छोटे भाई हो, आप थोड़ा सा adjust कर लो. नहीं. We abided by the international law. Although we had the national power to force our way through this issue, but we did not do it. Getting this point? Take the issue of enclaves. Enclaves क्या होते थे? एक कंट्री की सॉवरेन टेरिटरी जो दूसरे कंट्री के अंदर थी. क्या कह रहा हूं मैं, समझिए इसको. What is meant by enclave? एक कंट्री की सॉवरेन टेरिटरी जो दूसरे कंट्री के अंदर में. इंडिया और बांग्लादेश के केस के अंदर में, बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग रिवराइन terrain, a lot of Bangladeshi territory was part of Indian territory and vice versa. कुछ जगह पर तो ऐसे भी कॉम्प्लिकेशन थे कि बांग्लादेश की टेरिटरी भारत के अंदर में है, उसके अंदर इंडियन टेरिटरी, बिकॉज ऑफ कार्टोग्राफिक इश्यूज. इस सब को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेटल किया विद ओपन हैंड, खुले हाथ से. मतलब बांग्लादेश को ज्यादा दिया, भारत को
थोड़ा कम मिला, लेकिन उस चीज को सेटल किया. Had he so wished or India so wished, it could have used its brute force and tried to take the lion's share using the national power. But no, national power पे limitation. सही बात आती है. क्या क्या limitations देखी हमने पहली? International morality, world public opinion. Third is international law. Fourth is balance of power. This entire concept we are going to see shortly in detail. So I will not go into it right now. But please just note it is one of the limitation on national power. अभी आ ही रही है वो concept. Next, international organizations. International organizations circumscribe national power. If you don't believe me, ask Pakistan about FATF, Financial Action Task Force. FATF asked Pakistan to comply on 26 demands related to action against terror groups. भारत इतने सालों से प्रेशर डाल रहा है, और भी कंट्रीज ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने भी प्रेशर किया, लेकिन पाकिस्तान would not do it. But when FATF, which has an economic pincer, when FATF did it, तो पाकिस्तान बहुत बाकी कंप्लायंस कर. Almost all the major issues have been resolved, just a few remain. So एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने वो किया जो कई सारे कंट्रीज नहीं कर सकते. So नेशनल पावर के ऊपर में लिमिटेशन आई ना पाकिस्तान. It cannot get away by doing what it wants just because it has the power to do something. Got this idea? Next, issue of disarmament. Disarmament is a important theme in post World War II international relations. All countries are, in a way, pressurized to curtail their weaponry. So any country which blatantly tries to violate this, tries to increase its weaponry, will always be internationally looked down upon, unless you are a very powerful country. So आपके पास में पैसा है, आपके पास में national power है to build weaponry, does not mean that you can just go about doing it. नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए, अब उसका वो नेशनल पावर है टू डेवलप इट, बट इट हैज बीन शन्ड बाय द होल वर्ल्ड. इट हैज बीन मेड इनटू अ पराया स्टेट. आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड दैट कांसेप्ट. नोबडी डील्स विद नॉर्थ कोरिया नाउ. थोड़ा बहुत बस फूड और मेडिसिन इसके एड के को अगर छोड़ दें तो मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड नॉर्थ कोरिया से कोई खास संबंध नहीं रखते. How would it feel अगर आप अपना खुद एक ग्रुप इमेजिन करें, you are part of a group, और कोई आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, bare minimum. Will you not feel lost in such a group? यहाँ तो एटलीस्ट आप ग्रुप चेंज कर सकते हो. नॉर्थ कोरिया दूसरे प्लैनेट पे तो नहीं जा सकते. So this is also a limitation that acts on a country's national power. Now you would ask, sir, नॉर्थ कोरिया ने तो फिर भी किया ना, क्यों कर पाई? क्योंकि it has, first of all, it has two things. एक तो एक पागल रूलर है, for whom only he himself, his tenacity matters. And secondly, it has come at a great cost for its citizens. कैटरैक्ट का ऑपरेशन, कैटरैक्ट समझते हैं ना आपको, मोती बिंदु, उसका ऑपरेशन होना, ये भी नॉर्थ कोरिया के अंदर में मेडिकल जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट बनती है. Something that is so common, so routine across the world. This is the level of medical facilities that they have in their country. So what they have done has come at a great cost to the common people of North Korea. Did you understand this? Okay. So what did we see? National power is not absolute. It is limited by some forces. ठीक है? चलिए, so हमारा ये concept अब complete हो गया. National power. अब इसके आगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट देख रहे हैं, विच इज बैलेंस ऑफ पावर. व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस ऑफ पावर? Yes. So all these limitations will not be uniformly applicable to all countries.
It is like, just to give you a very simple example, if this is the limitation on national power, and the country's national power is way above this, so it can get away by still violating this, like George Bush did it. Inside of United Nations, the resolution to invade Iraq was voted against, but still he and Tony Blair, they went ahead with that. Why? Because there is a disproportionate level of national power. So what you are saying, I completely conceded. But even then, USA cannot frivolously use it. It will use this brute national power only when the benefits outweigh the limitations. ये सब करने के बाद में मेरा फायदा क्या है? अगर वो बहुत बड़ा और बहुत significant है, only then it will overlook. It will not do it for small. We'll try to understand what is the core concept. Balance of power refers to a state of affairs in which no one state predominates over others. Please mark the words very, very carefully. क्या कहा है इसमें? No one state predominates over others. Let me give you an example of Napoleonic France. When Napoleon was at the peak of his power, he has bashed everybody in Europe right, left and center. इटली के सारे किंगडम्स को आइदर एनेक्स किया या एक अलग किंगडम बनाया जिसका खुद ही राजा बन गया। जर्मनी के सभी 300 स्टेट्स को 39 बनाता है और खुद उसके ऊपर में रूल करता है। रशिया को जोर जबरदस्ती फ्रेंडशिप ट्रीटी एक्सेप्ट करवाया। स्पेन के ऊपर में अपने सौतेले बेटे को राजा बना। ऑल ऑफ यूरोप इज सबड्यूड बाय वन पावर, दैट इज नेपोलियन। ठीक है, so this is the exact opposite of what we are seeing here. One power dominating over all others. उस situation का opposite है balance of power का situation, where no one power can predominate over others. Got this idea? अगर dominate कर सकता है जैसे नेपोलियन ने किया, तो उस situation को हम कहते हैं hegemony, और करने वाले पावर को कहते हैं हेजेमॉन। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पावर का ऑपोजिट है हेजेमनी वाला सिचुएशन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, प्लीज इस कंसेप्ट को थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन लिटरल मीनिंग आप कभी कभी ले लेते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होना। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है एक पावर सभी के ऊपर में डोमिनेट कर रहा है, ऐसी सिचुएशन नहीं बनने दें। दैट इज बैलेंस ऑफ पावर। व्हाट इज आइडिया? Now this balance of power can manifest in 3 different ways. 3 तरीके से ये नजर आ सकता। अपनी क्लास के अंदर में फोन को जो है वो साइलेंट रखें या रिंगटोन अच्छी है। कौन सी 3 सिचुएशंस? 1, an equality or equilibrium of power among states resulting in balance. ये एक हो सकती है सिचुएशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस ऑफ पावर मतलब एक पावर प्रीडोमिनेट नहीं कर सकता, ऐसी सिचुएशन ये 3 तरीके से दिख सकती है। पहला उसके अंदर में ये है कि सभी का पावर जो है वो नियर अबाउट जेम तेम सगळ्यांची शक्ती सारखी। दिस इज द फर्स्ट आउटकम। ओके, ऐसा रियल वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर में होना बहुत मुश्किल है। एवरीबडी इज एट द सेम लेवल। And here, please remember, this is not mathematical equality. Algebra का equation नहीं, near about same. Second, distribution of power in which some states are stronger than other states. मान लीजिए 10 पावर है, पहली सिचुएशन क्या बनी? सभी 10 का पावर जो है वो राउंड अबाउट सेम। अच्छा, प्लीज याद रखिए, पावर की जो कंसेप्ट है ये कोई फिजिक्स वाला पावर नहीं। ऐसा नहीं पूछना कि सर कितने
एम्पियर का है, कितने वोल्ट का है, कितने पास्कल का है, वैसा नहीं है, ठीक है। इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट। समझ आनी बात आपको? रिलेटिव आइडिया। रिलेटिवली स्पीकिंग ये लोगों की अगर सेम लेवल है सभी की, ये फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, उसमें के 4 जो है वो ज्यादा ताकत रखते हैं और 6 जो है वो कम ताकत। A few are more powerful, the rest others are less powerful। या लास्ट सिचुएशन, एनी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कोई ग्रुपिंग नहीं है उसके अंदर में कि ये ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है। इट इज वीकली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट नो वन पावर इज डोमिनेटेड। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये अंडरलाइनिंग फैक्टर। नेपोलियन वाली सिचुएशन हमको नहीं चाहिए। हेगेमनी वाली सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ। Did you understand what is balance of power? तो मुझे कोई बता सकता है what is meant by balance of power? Raise your hands, please. मिलो ना, तुम तो दिल घबराए, मिलो तो हाथ छुड़ाए। Yes, विष्णु। सिर्फ इन्वर्स किया तुमने, पहले ये कोर कंसेप्ट पहले बताना चाहिए और फिर उसके मैनिफेस्टेशन। फिर बाकी यू सेड इट राइट। व्हाट इज पॉइंट? व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर? विल टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes and then we'll resume after that।